Good morning, dear students. Today we are here with our economics topic, that is chapter 2, Fundamental Concepts and Terminologies, part 2. See, in the first part we have already discussed about the price and value, right? We have discussed the difference between price and value. Okay. So in this lecture we are going to move to the next terminology, and that is goods and service. The next concept of our topic is goods and services. Okay. So let's move on. So our highlights points are types of goods we are going to discuss here. So what types of goods are there? There are physical or tangible goods, we can say intangible goods, non-economic goods, economic goods, durable goods, perishable goods, private goods and public goods, consumers goods and producers goods. Right. See, some of the terminologies we have already discussed, right? Some of the terms I hope that in first part we have discussed it clearly. जैसे tangible और intangible हमने discuss किया था उसमें भी, right? Non-economic, economic हमने first chapter में discuss किया है. Okay, durable goods, perishable we'll discuss today. So let's move on. First comes the physical or tangible goods. Right, physical or tangible goods क्या है? तो tangible goods which have its physical existence. Okay, physical goods या tangible goods किसे कहते हैं? The goods which have its physical existence that we called as tangible goods. The goods which we can see, we can touch. Okay, that types of goods we called as physical goods. Okay, so some goods have physical existence like pen, bat, television, refrigerator, stuff, mobile phones, and so on. Right, and this can be measured. The goods which have physical existence, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, right, उसके कलर्स और वो सब हम जस्टिफाई कर सकते हैं, that is we call tangible goods. Okay, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं. Okay, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्टोव, mobile phones, etc. and etc. So many examples we do have. Okay, next comes intangible goods. Intangible goods क्या है? Tangible का opposite. Okay, tangible which have physical existence, and intangible goods which do not have its physical existence. Right, that good which we can only feel. Okay, right. For example, education. ओके, मेडिकल कंसल्टेंसीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो फिजिकल गुड्स नहीं है, इट्स ओनली गिव्स अ टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दैट इज वी कॉल इंटेंजिबल गुड्स. ओके, सो टेंजिबल गुड्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इंटेंजिबल गुड्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. सो सम गुड्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली. कार्डिनली यानी उसे हम किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल मैनर्स में या किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते. ओके, एंड दोज आर कॉल्ड सर्विसेज एज आई टोल्ड यू. ओके, फिजिकल गुड्स यानी द गुड्स वी कैन से, ओके, जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ओके, जिसको हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट इज फिजिकल गुड्स. ओके, बट इनटेंजिबल गुड्स को क्या कहेंगे? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, जो मैंने सर्विसेज बताई. सो ऑल सच टाइप्स ऑफ इनटेंजिबल गुड्स आर कॉल्ड सर्विसेज. ओके, जितनी भी सर्विसेज है वो सारी ही इनटेंजिबल गुड्स है. फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन दे दिया मैंने, मेडिकल कंसल्टेंसी, रेडिएशन ऑफ म्यूजिक, कुकिंग एंड सो ऑन. क्लियर? फिजिकल गुड्स, इंटेंजिबल गुड्स क्लियर हो गए. नेक्स्ट, so next is non-economic goods. See, we have discussed this in first chapter. Okay, economic और non-economic क्या है वो हमने discuss किया. अब उससे related goods के बारे में हम discuss करेंगे. Okay, now in this also we are going to use a term that is exchange value, which we have discussed in part 1. ठीक है, सो एक्सचेंज वैल्यू क्या है फिर से बता दो. व्हेन अ कमोडिटी और सर्विस इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विस, देन द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी. राइट, जैसे मैंने 1 kg व्हीट के एक्सचेंज में 1 kg राइस लिया, सो दैट इज वी कॉल एक्सचेंज वैल्यू. ओके, सो नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या है? नॉन इकोनॉमिक गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू. ऐसे गुड्स जिसमें कोई भी तरीके की एक्सचेंज वैल्यू जैसी कोई चीज नहीं हो. राइट, यानी हम कुछ दे और उसके सामने हमें कुछ चाहिए, हम कुछ डिमांड करें, वी वांट सम गेन, सम प्रॉफिट, सम अर्निंग्स. इफ ऐसा कोई भी मॉनेटरी गेन या ऐसा कोई भी हमें गेन नहीं चाहिए, सो वी कॉल इट एज नॉन इकोनॉमिक गुड्स. मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज वैल्यू, देयर इज ओनली गिव और देयर इज ओनली टेक. There is no give or take.
ठीक है. सो दे आर अबंडेंट इन सप्लाई. सो जो भी ऐसे गुड्स है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स जितने भी है, वो यूजुअली उसकी सप्लाई बहुत हाई होती है. दे आर अबंडेंट. ओके, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है. ओके, दैट्स वाई उसकी सप्लाई ज्यादा है. एंड डू नॉट गो थ्रू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉन इकोनॉमिक गुड्स जैसी भी जो भी चीज है, वो कभी भी किसी भी इकोनॉमिक प्रोसेस से नहीं जाती. राइट, इकोनॉमिक प्रोसेस क्या, जैसे कि प्रोडक्शन से उसे नहीं गुजरना पड़ता, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन और नथिंग. ओके, राइट, वी डू कंज्यूम इट. ओके, बट वी डू नॉट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. सो एनी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन नॉन इकोनॉमिक गुड्स. ठीक है, दो दे आर कंज्यूम्ड बाय पीपल, नो डाउट दे आर कंज्यूम्ड. सी, लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, देयर आर थ्री थिंग्स इन इकोनॉमिक प्रोसेस: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉरी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, कंजम्पशन ही होगा. व्हाट इज दैट, के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज नेचुरली अवेलेबल. ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, पीपल उसे कंज्यूम करेंगे, उसे यूज करेंगे, बिकॉज इट इज इन अबंडेंट, इसकी सप्लाई अबंडेंट है. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखो, सनलाइट, एयर, इसे हमें प्रोड्यूस भी नहीं करना, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना पड़ता. राइट, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी है बाय नेचर. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स जितने भी होते हैं, विच आर द नेचुरल थिंग्स वी कैन से. Right, it doesn't require any economic process like production or distribution, but it is being consumed by the people. Yes, we use it. Sunlight को हम use करते हैं, air हमें चाहिए, and so on. Whatever types of natural resources are there, we use such things. Okay, so this we called non-economic good. Okay, next comes types of goods. में next topic है economic goods. Okay, so economic goods क्या है, नॉन इकोनॉमिक का ऑपोजिट. ओके, when we do not demand anything in exchange, we call it as नॉन इकोनॉमिक गुड्स. हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है गुड्स में कि हम एक गुड्स दे और सामने हमने कुछ चाहिए, तो भी हम उसे नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं. बट इकोनॉमिक गुड्स क्या है, वी कमांड एक्सचेंज वैल्यू, हमें एक्सचेंज वैल्यू चाहिए. मैं अगर कुछ ले रही हूँ या खरीद रही हूँ, तो मुझे उसके सामने कुछ ना कुछ एक्सचेंज में देना पड़ेगा. इट इज अ सोर्स ऑफ करेंसी और इट इज अ सोर्स ऑफ गुड्स ऑल्सो. ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम था, तो गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बट नाउ करेंसी और रुपी और मॉनेटरी, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो गुड्स विच कमांड एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स. ऑल सच गुड्स जो हम खरीदते हैं या बेचते हैं, we sell it or we buy it, when there is a process of exchange value, okay, in the market, we call it as economic goods. They command an exchange value as they are scarce in supply. See, दोनों के डिफरेंस अगर देखो फटाफट, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक गुड्स के. ओके, सो पहले नॉन इकोनॉमिक गुड्स देखो. नॉन इकोनॉमिक गुड्स यानी गुड्स विच डू नॉट कमांड एनी एक्सचेंज वैल्यू, ऐसे गुड्स जिसमें कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती. इकोनॉमिक गुड्स में क्या है, गुड्स विच कमांड एक्सचेंज वैल्यू, इसमें एक्सचेंज वैल्यू होती है. ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक्स के जो भी गुड्स है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर अबंडेंट इन सप्लाई. ठीक है, बहुत ज्यादा सप्लाई है, वो ऐसे गुड्स है जो कभी शायद खत्म नहीं होंगे, लाइक सनलाइट और एयर. बट इकोनॉमिक गुड्स आर स्केर्स इन सप्लाई. इकोनॉमिक जैसे गुड्स, क्योंकि वो मैनमेड रिसोर्सेज है, या तो वो मैनमेड के थ्रू आ रहे हैं वो गुड्स, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें सारी इकोनॉमिक प्रोसेसेस होती है, एंड दैट्स व्हाई दिस गुड्स आर स्केर्स इन सप्लाई. इस गुड्स की हमेशा कोई ना कोई स्केर्सिटी रहती है, because there are unlimited wants. Human beings के wants unlimited है, but the resources are limited. ठीक है, so there in economic goods we always find scarce in supply in relation to their demand, and their supply can be held under control. ठीक है, जितनी भी डिमांड होगी उस हिसाब से शायद ही उतना सप्लाई हो सकता हो. ओके, सो हमेशा उस एक सप्लाई पर एक कंट्रोल रहेगा. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक गुड्स आर नॉट अबंडेंट और इट इज स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड. सपोज 10 यूनिट्स की डिमांड है, तो वी सप्लाई सिर्फ 8 यूनिट्स का होगा, पर 2 जो हमारे यूनिट्स है वो हमेशा स्केर्स रहेंगे. ठीक है,
because human beings, human wants are unlimited, and to supply all such wants, it's not possible. So the supply of wants are limited, the supply of resources are limited. Okay. नेक्स्ट देखो ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, ये बहुत इजी है. ओके, सी गुड्स विच कम टू द मार्केट कैन बी ड्यूरेबल और पेरिशेबल. हम जब मार्केट में जाते हैं वी फाइंड बोथ द काइंड्स ऑफ गुड्स, दैट इज ड्यूरेबल एज वेल एज पेरिशेबल. ओके, सो ड्यूरेबल गुड्स कैसे कहता है, तो ड्यूरेबल आर द गुड्स which can be used for a longer period of time and repeatedly we can use it. For example, benches ले लो, कोई क्लोथ्स, शूज, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन, जो भी चीजें हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसे सेव कर सकते हो, सिक्योर रख सकते हो, या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हो, सो वी कॉल इट एज ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, यू कैन फाइंड मेनी ऑफ द थिंग्स इन योर हाउस इटसेल्फ. ओके, एग्जांपल भी दिया है, शूज, क्लोथ्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, राइट. बट पेरिशेबल गुड्स क्या है? पेरिशेबल गुड्स ऐसा है जो लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकते, राइट, और उसे एक ही बार में आपको यूज कर लेना, और आपने यूज कर लिया वो चीज खत्म. जैसे मिल्क, आप मिल्क को ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 1.5 दिन 2 दिन तक स्टोर करोगे, उसके बाद वो बिगड़ जाएगा, राइट, एंड यू कैन नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन. वंस इट इज यूज इट्स फिनिश्ड. ठीक है, सो ऑल सच गुड्स आर पेरिशेबल गुड्स व्हिच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज अ कंज्यूमेबल ओनली वन. ओके, उसे आप एक ही बार यूज कर सकते हो. बट ड्यूरेबल गुड्स कैसे होंगे? ड्यूरेबल गुड्स यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, पेरिशेबल गुड इंस्टेड डू नॉट हैव अ लॉन्ग लास्टिंग टाइम, राइट, कैन नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर कंज्यूमेबल ओनली वंस. एक ही बार उसे यूज कर सकोगे. एग्जाम्पल, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन. ठीक है, सी मैं यहाँ पे डिफरेंस के साथ इसलिए आपको समझा रही हूँ बिकॉज मैं होमवर्क में यही चीज देने वाली हूँ, आपको इन सारे टाइप्स ऑफ गुड्स के डिफरेंसेस लिखने हैं बाय योरसेल्फ. ठीक है, सो जितने भी मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान रखो और उसी पॉइंट्स के बेस पर आपको डिफरेंसेस फॉर्म करने हैं. ओके, नेक्स्ट कम प्राइवेट गुड्स. ओके, अब प्राइवेट और पब्लिक दो टाइप के गुड्स होते हैं. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड व्हाट इज प्राइवेट गुड्स. Okay, see, goods are classified as private goods and public good based on their ownership and nature of use. See, एक तो उसकी ownership क्या है और उसका nature of use, यानी आप उसे कौन से तरीके से यूज करके, उसके बेस पर दो टाइप्स के गुड्स है, प्राइवेट और पब्लिक. So let's move on to private goods. Private goods are goods which can be possessed and owned by a private individual. ठीक है, प्राइवेट गुड ऐसे टाइप के गुड्स हैं जो क्या करता है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल भी उसे ओन कर सकता है, वो उसे खरीद सकता है अपने खुद के प्राइवेट यूज के लिए. शी और ही टेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग दिस गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैं उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकती हूँ, मुझे उसे बेचना हो तो मैं बेच सकती हूँ, उस पर मुझे कंस्ट्रक्शन करना, आई कैन डू व्हाटएवर बिकॉज दैट इज माय ओन प्रॉपर्टी, इट्स पोजीशन इज माइन. ठीक है, वो उसका जो पोजीशन है वो भी मेरे पास है, वो मेरी प्रॉपर्टी, आई कैन डू व्हाटएवर, आई कैन मेक एनी ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, so that am I call it as private good. Okay, so this goods possess the characteristics of excludability and competitiveness. ठीक है, तो ऐसे जितने भी गुड्स है, ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? एक्सक्लूडेबिलिटी एंड competitiveness. अब ये क्या है? Look at here. Excludability means once a good is owned and being used by one individual, another individual cannot possess and use it at the same time. Exclude कर देना किसी को. एक्सक्लूड करना यानी उसको निकाल देना या उसे इंक्लूड नहीं करना. एक्सक्लूड का अपोजिट क्या होता है? इंक्लूड नहीं करना. ओके, एक्सक्लूड का अपोजिट इंक्लूड. तो एक्सक्लूड मतलब क्या कि किसी को इंक्लूड नहीं करना आपका उसमें, राइट. मेरी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी ओन की है, तो उस प्रॉपर्टी में किसी और का कोई भी तरह का इंटरफियरेंस या इंक्लूड नहीं होगा. Nobody is including in that property और वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. मुझे उसके साथ जो करना है that is my own decision. Getting? So once a good is owned, एक बार मैंने कोई भी चीज खरीद ली, right,
एंड बीइंग यूज्ड बाय वन इंडिविजुअल, मैं अकेला उस चीज को यूज कर रही हूँ, राइट। सो अगर मैं उस चीज को यूज कर रही हूँ, इट इज माई गुड, अनदर इंडिविजुअल कैन नॉट पोजेस, कोई भी दूसरा बंदा आके उसे पोजेस नहीं कर सकता या उसे यूज नहीं कर सकता या उस पर वो हक नहीं जमा सकता और ना ही उसे यूज कर सकता एट द सेम टाइम। कब तक? जब तक वो प्रॉपर्टी मेरी है या वो गुड्स या कुछ भी वो चीज मेरा है। एंड इंडिविजुअल्स हैव टू compete फॉर द ओनरशिप ऑफ दिस गुड्स। सो किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, अगर वो गुड्स को उसे यूज करना है तो उसे compete करना पड़ेगा। compete यानी या तो वो मुझसे वो गुड खरीद ले, वो प्रॉपर्टी मुझसे खरीद ले, अगर मैंने बेच दी तो वो उसकी। So there is a transfer of ownership in private goods, but until and unless वो property जिसके नाम है या वो goods जिसके भी है वही उसका मालिक है और वही उसे यूज करेगा। Getting? For example, a packet of biscuit purchased by one child in a market which has a competition among buyers comes under the ownership of this child, and another child is excluded from having the same packet of biscuit. बहुत इजी एग्जाम्पल है कि एक बच्चे ने एक पैकेट ऑफ बिस्किट खरीद लिया, अब उस बिस्किट का ऑनर कौन हो गया? वो बच्चा हो गया, क्योंकि उसने वो खरीदा है मार्केट में, राइट। विच हैज अ कंपटीशन अमॉन्ग बायर्स कम्स अंडर। अब उस बच्चों को जो भी, जैसे देयर आर वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स, राइट, पैकेट्स, बट उसे जो पसंद था वही उसने खरीदा। तो उस कॉम्पिटेटिव मार्केट में, उस बिस्किट के कॉम्पिटिशन में जो भी अनदर सब्स्टिट्यूट बिस्किट्स पैकेट्स थे, उसमें से उस बच्चे ने जो चूज किया वो उसका हो गया। गेटिंग? अब वो ऑनरशिप किसकी हो गई? उस बच्चे की, क्योंकि उसने उसे खरीद लिया। एंड अनदर चाइल्ड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग द सेम पैकेट ऑफ बिस्किट। अब वही पैकेट कोई और बच्चा नहीं लेगा उसके पास से, अगर जब तक वो बच्चा उससे वो पैकेट नहीं देता। गेटिंग? सो इन शॉर्ट, जो चीज आप खरीदते हो वो चीज आपकी हो गई, उसकी ऑनरशिप आपकी हो गई। उसके साथ अब आपको क्या करना, उसको, उस बिस्किट को उसे खाना है, उसे फेंक देना है, उसे डॉगी को दे देना है, दैट इज हिज डिसीजन। गेटिंग? यू कैन नॉट इंटरफेयर इन हिज property or in his goods. Okay, the individual who pays a price gets the good and others cannot have the same unit. Okay, कोई भी एक इंडिविजुअल कुछ भी चीज ओन करने के लिए, कुछ भी चीज पॉजेस करने के लिए, राइट, कुछ भी चीज खरीदने के लिए वो कुछ ना कुछ उसकी प्राइस देता है, राइट, उसका अमाउंट वो पे करता है, तो वो चीज वही यूज करेगा, वो चीज फिर दूसरे किसी की नहीं हो सकती। For example, one who does not pay price for a mobile phone does not get it. राइट, जो मोबाइल फोन नहीं खरीदना चाहता वो मोबाइल फोन उसका नहीं हो सकता, जिसने खरीदा वो उसका है। ठीक है, प्राइवेट गुड्स यानी, इन शॉर्ट क्लियर हो गया, प्राइवेट गुड्स यानी कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आपने उसको खरीदा है, यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और अ गुड्स, दैट इज योर डिसीजन व्हाट इज टू बी डन विद दैट। nobody or no other person can able to interfere in your decision or in your property or in your good. Okay, that person is excluded, वो person उसमें से, वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता, that is we can say private goods. ठीक है, नेक्स्ट आता है पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या है? देखो, ऑब्वियस है, पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स का अपोजिट है। ठीक है, प्राइवेट गुड्स को एक इंडिविजुअल खरीदता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी है, पर पब्लिक गुड्स क्या है? सी, ऑन द कॉन्ट्ररी, पब्लिक गुड्स कैन बी यूज्ड बाय मेनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार है, राइट, अब वो कार मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, वो कार को मैं यूज कर रही हूँ, अब उसे कोई और यूज नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस मैं उसे ना दूं तब तक। ठीक है, बट बस क्या है? बस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बट उसे हर एक इंडिविजुअल यूज कर रहा है। बस में कितने सारे लोग ट्रैवल करते हैं। गेटिंग? तो डिफरेंस समझ में आ गया प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी का, यानी प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स का। ठीक है, सो पब्लिक गुड्स कैन बी यूज्ड बाय मेनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे उसी चीज को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिक गुड्स एक ही वक्त पे एक ही बंदा एक ही चीज को इस्तेमाल करता है, तो प्राइवेट गुड्स। They possess the characteristics of joint demand and collective consumption. तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक जॉइंट डिमांड है। जॉइंट डिमांड यानी जिसके पास व्हीकल नहीं है वो क्या करेगा? बंदा ऑटो में जाएगा या बस में जाएगा,
गेटिंग? तो दैट इज वी कॉल्ड अ जॉइंट डिमांड. सबके पास ऐसी कोई इश्यूज है, वो सब बस में जा रहे हैं. एंड कलेक्टिव कंजम्पशन, और मिलजुल के उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं. सच गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड बाय मेनी पीपल्स. ओके, इफ वन इंडिविजुअल यूजेस इट, द अदर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड. बट पब्लिक गुड्स में क्या है कि अगर एक बंदा उसे यूज कर रहा है तो वो दूसरा बंदा उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकता, जो हम प्राइवेट में कर सकते हैं. गेटिंग? प्राइवेट में दूसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, यहां होती है. ओके, मैं अगर मेरी कार है, मैं उसका एक्सीडेंट करूं, मैं तोड़ू, मैं क्या करूं, दैट इज माई डिसीजन. ओके, दैट इज कंप्लीटली माई डिसीजन. बट क्या होगा, वहां पे वो डिसीजन नहीं होगा. ठीक है, पब्लिक गुड्स में हर एक का इन्वॉल्वमेंट होगा. क्लियर? सो यहाँ तक क्लियर हो गया. सो दे आर ईदर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट फॉर और सम पीपल पे फॉर इट टुगेदर. सो यूजुअली पब्लिक गुड्स किसके होते हैं? पब्लिक गुड्स इट्स ऑफ गवर्नमेंट्स गुड्स, बट गवर्नमेंट उस गुड्स को पब्लिक के यूसेज के लिए रखती है. ठीक है, सो दे आर ईदर प्रोवाइडेड फॉर बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल और सम पीपल पे फॉर इट टुगेदर. ठीक है, गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है कुछ लोगों के लिए या पब्लिक, कॉमन पब्लिक के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ पब्लिक गार्डन or a garden of a housing society. See, public garden यानी whosoever can go and visit that garden. But a garden of a housing society यानी वो सिर्फ उस housing society का ही garden है और उस housing society के लोग ही उस garden को use कर सकते हैं. दोनों में difference है. एक पब्लिक गार्डन यानी कोई भी एरिया का बंदा कहीं से भी उस गार्डन में जा सकता है. बट द गार्डन ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी यानी उस हाउसिंग सोसाइटी वालों की वो प्रॉपर्टी होगी. It is a public property, it is a public goods, but for that particular public only. ठीक है, so in short, private goods are owned and used by private individuals and public goods are owned by the government or group of people and are used collectively. सो इन शॉर्ट क्या है कि प्राइवेट गुड्स जो है वो कोई इंडिविजुअल ओन करता है, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो. बट पब्लिक गुड्स क्या है, वो गवर्नमेंट ओन करती है, उसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट. और वो गुड्स को उसने गवर्नमेंट ने क्यों रखा है? सो दैट कि पब्लिक के यूसेज के लिए रखा है. ठीक है, और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल. जैसे बहुत सारी चीजें होती है, वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रस्ट एंड ऑल सच. ट्रस्ट वाले भी ऐसा बहुत कुछ करते हैं, राइट? गार्डन बनवाते हैं या ऐसा कुछ. ओके, सो वो भी क्यों करवा रहे हैं? वो अपनी मर्जी से पब्लिक को दे रहे हैं कि ये आप यूज करो, कलेक्टिवली यूजेज. ठीक है, सो होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स. क्लियर? चलो, नेक्स्ट कम्स कंज्यूमर्स गुड्स. ओके, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स. सी, मार्केट में जब भी आप जाओ तो आपको दो टाइप के गुड्स मिलेंगे. वन इज कंज्यूमर्स गुड्स एंड अदर इज प्रोड्यूसर्स गुड्स. अब ये दोनों क्या है, लेट्स सी. गुड्स कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यस, ऑफ कोर्स, गुड्स ऐसी चीज है, कोई भी कॉमोडिटी ऐसी चीज है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली. ओके, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ गुड एंड दिस गुड इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वांट डायरेक्टली, देन इट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर गुड. जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है यानी उस गुड्स को यूज करता है, राइट, दिस गुड इज कैपेबल, और वो गुड उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे तो हम उसे कहेंगे कंज्यूमर गुड. इन शॉर्ट, व्हेनेवर ह्यूमन वांट्स इज डायरेक्टली सेटिस्फाइड बाय एनी ऑफ द गुड्स, देन वी कॉल इट कंज्यूमर गुड. These goods have passed the final stage of production. तो वो goods क्या है, प्रोडक्शन के बहुत सारे स्टेज होते हैं, राइट? उस चीज को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. वो स्टेजेस हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. ठीक है, धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या है, ऑल सच. बट अभी सिर्फ इतना समझ लो कि देर आर नंबर्स ऑफ स्टेजेस इन प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन के जो फाइनल स्टेज है, राइट, वो स्टेज क्या होता है कि नाउ दिस गुड इज रेडी. अब ये गुड ऑल फिनिश्ड हो गया है एंड इट इज रेडी टू यूज. और वो यूज कौन करेगा? कंज्यूमर. जैसे कुक्ड फूड,
अब कुक्ड फूड को प्रोडक्शन के हिसाब से देखो तो क्या होता है कि पहले हमें वेजिटेबल्स लाने पड़ते हैं, राइट, हमें स्पाइसेस लाने पड़ते हैं, ओके, फिर वो स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स को कुक करो, बॉईल करो, वट एवर द प्रोसीजर वी रिक्वायर्ड, एंड देन आफ्टर व्हेन इट कुक्ड इट्स रेडी टू यूज, इट्स रेडी टू ईट, ठीक है। सो प्रोडक्शन के भी ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स लाने पड़ते हैं, फिर उस पर वर्कआउट करना पड़ता है, फिर लेबर्स होते हैं, ये वो, मतलब देयर आर लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन, बट द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वी कैन से दैट इज अ कंज्यूमर, दैट गुड्स इज रेडी टू यूज नाउ, ओके, जैसे कुक्ड फूड, सो दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, तो ये गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, so that we called as a consumers goods. consumer कौन होता है? we people are consumers. हम जो चीजें खरीदने जाते हैं तो हम हुए consumer, right? producers goods क्या है? देखो, when a good is used at the intermediate stage of production of a final good. अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के वी ऑल नो कि कार कैसे बनती है, ठीक है। अब कार के बनने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फैक्ट्री में जाके या एक ही जगह पे पूरी कार असेंबल्ड हो जाती है, बन जाती है, नो, उसके टायर कहीं से बनते हैं, उसके स्पेयर पार्ट कहीं और से बनते हैं, गेटिंग। तो इस हिसाब से क्या होगा कि एक कार को फुल्ली फिनिश्ड करने के लिए, उसको फाइनल स्टेज तक यूजेबल बनाने के लिए क्या है, एक जगह से हम व्हील्स इकट्ठा करेंगे, एक जगह से दूसरे उसका इंजन लाएंगे, एक जगह से हम उसके दूसरे स्पेयर पार्ट्स लाएंगे, स्क्रूज लाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे प्रोड्यूसर्स है, वो प्रोड्यूसर्स दूसरे प्रोड्यूसर को वो गुड दे रहे हैं सो दैट कि वो एक फाइनल स्टेज तक वो गुड बन सके। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स गुड्स का मतलब क्या होता है? द गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोड्यूसर, दूसरे प्रोड्यूसर के लिए वो गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है, सो दैट के उसमें वो पूरा उस गुड्स को फाइनलाइज करके उसकी फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाए, एंड देन आफ्टर वो क्या होगा, लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, अब आप क्लोथ खरीदते हो तो क्या होता है, पहले क्लोथ कॉटन आता है, कॉटन में से फिर क्या बनता है, उसे टेक्सटाइल्स में भेजा जाता है, उसकी वो रस्सी जैसा वो बनाया जाता है, थ्रेड बनाई जाती है, कॉटन थ्रेड बनाई जाती है, एंड देन आफ्टर उसमें से शर्ट्स बनते हैं, वेरियस थिंग्स। तो वो जो जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, बट वो सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आती है, तो वो कोई और प्रोड्यूस करता है, वो कोई और प्रोड्यूसर लाता है, गेटिंग। जैसे कॉटन है, इट इज ग्रोन बाय फार्मर से प्रोड्यूसर ने ले लिया, अब उसे वो दूसरी जगह पे भेजेगा उसको थ्रेडिंग करने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए, राइट। तो उसके लिए जो भी मशीनरी चाहिए उसको किसी और से लेनी पड़ेगी प्रोड्यूसर्स को। सो इन शॉर्ट प्रोड्यूसर्स गुड्स आर इंटरमीडिएट स्टेज गुड, यानी शुरुआत के और लास्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए बीच में जितने भी प्रोड्यूसर उस गुड्स को यूज करते हैं, राइट, सो दैट कि वो कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट हो सके, ऐसे गुड्स को हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स गुड, राइट। व्हेन इट इज परचेस्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड, व्हेन इट इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगा कंज्यूमर। कंज्यूमर कब कंज्यूम करेगा? जब वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब। But this good helps in the production of a final good, then such a good is called producer's good. But ये good की वजह से वो production final goods तक पहुंचा, उसका final stage तक वो पहुंचा, right? कार है but अभी wheel ही नहीं होते तो कार चलती नहीं, तो व्हील है, व्हील किसी ने प्रोड्यूस किया, उस प्रोड्यूसर से हमने व्हील खरीदे, उसको असेंबल्ड किया, तब जाके कार बनी। समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल कॉटन यूज टू मेक क्लोथ, ठीक है। मशीन यूज इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गारमेंट्स, जैसे मैंने गारमेंट्स की बात की, जैसे कॉटन ले आए, राइट, उस क्लोथ को बनाने के लिए, अब मशीन्स लाने पड़ेंगे हमें उसे गारमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो मशीन कहाँ से लाएगा? कोई और प्रोड्यूसर से हम खरीदेंगे, ठीक है। A tractor which facilitates in producing food grains. So ऐसे जितने भी goods है जो एक producers खरीदता है from the producer, ठीक है। So that is we called a producer's goods, ठीक है, which is not directly consumed by consumer in short. Okay, these goods, producers goods are produced by or consumed by another producers, ठीक है। Producers goods
दूसरा प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है, कंज्यूमर इसे कंज्यूम नहीं करता। कंज्यूमर्स गुड्स में क्या है कि डायरेक्टली कंज्यूमर ही उसे कंज्यूम करता है, कंज्यूमर ही उसे यूज करता है। पर प्रोड्यूसर गुड्स क्या है कि प्रोड्यूसर गुड्स में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है उसे कोई और प्रोड्यूसर यूज करता है, ठीक है। So they satisfy human wants through the final good and not directly. तो ये satisfy करेगा, ये कंज्यूमर तक भी ये गुड्स पहुंचेंगे, बट कब? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। यानी कंज्यूमर उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा, कंज्यूमर डायरेक्ट कॉटन नहीं खरीद रहा, समझ में आ रहा है? वो क्या खरीद रहा है? वो गारमेंट खरीद रहा है, वो या वो स्टिच शर्ट खरीद रहा है। तो उसके आगे के जितने भी प्रोसीजर्स है उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स गुड्स आ गए, समझ में आया? सो दैट विल बी ऑल्सो कंज्यूम्ड बाय सम और अदर वे बाय द कंज्यूमर, बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए। So I'm ending my lecture here, right? In this part we have only discussed the types of goods, which is the most important one, right? क्योंकि ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो इकोनॉमिक्स में बहुत बार यूज होंगे। प्राइवेट गुड्स क्या है, पब्लिक गुड्स क्या है, कंज्यूमर्स गुड्स, प्रोड्यूसर्स गुड्स, ड्यूरेबल, पेरिशेबल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको या इसके ये सारे टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। सो ये लेक्चर बहुत इजी था, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था। इट्स ऑल अबाउट द गुड्स और कमोडिटीज वी हैव डिस्कस्ड, ओके। वी विल गो थ्रू द थर्ड लेक्चर ऑल्सो। थर्ड लेक्चर में हम आगे और भी टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, ओके। सो लर्न दिस लेक्चर प्रॉपरली, क्लियर इट आउट, ओके। डाउट्स हो तो बार बार इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।